Hello guys, welcome with competitive exam learning channel. It is part 2 related to questions for competitive exams like NEET, IIT, JEE and other competitive exams. This video contains questions related to chemistry. So let's start. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन 1, अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आप जानते हैं Cp मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv heat capacity at constant value. So what is the relation between them? So right answer is Cp minus Cv is equal to R. R is gas constant, universal gas constant है R. Question number 2. Which one of the following polymers is prepared by addition polymerization? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पे मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते जाते हैं कि इंडिविजुअल इंटैक्ट इनका बना रहता है। सो बाय एडिशन विच पॉलीमर फॉर्म्स? टेफ्लॉन, नाइलॉन 66, नोवोलैक, डेक्रॉन। सो आंसर इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आप जानते हैं यूटेंसिल्स में जो लेयर होती है, प्रेस में लेयर होती है, ये टेफ्लॉन की लेयर होती है। इट इज पॉलीमर एंड फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? देखिए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में हमें पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल 2 एलिमेंट मिलते हैं, ब्रोमीन विच इज नॉन मेटल एंड हियर इज मेटल, दिस इज ओनली हाइड्रागायरम मीन्स पारा मरकरी. So for distillation method is used for purification of mercury. So there are options: electrolysis, chromatography, distillation, zone refining. So answer is distillation because this metal found in liquid state at room temperature. Next question, what is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? रिएक्शन है एसीटोन इज रिएक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर. मीन्स फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो आप जानते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है. फॉर्मेल्डिहाइड gives primary alcohol, other senior aldehydes give secondary alcohol, but ketone, acetone is ketone, it gives tertiary alcohol. So whenever acetone reacts with Grignard reagent, it gives an adduct which on hydrolysis gives tertiary alcohol 2-methyl butane 2-ol. So it is right answer. Next question is match the columns. फर्स्ट कॉलम में कुछ रिएजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं. सेकंड में उनके बारे में है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो देखिए PCl5, PCl5 के आप स्ट्रक्चर देखिए इस तरह की होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. इट इज फॉर्म्ड बाय sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन. SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इट हैज octahedral shape and sp3d2 hybridization takes place in its formation. Next, BrF5 bromine pentafluoride. So structure of this compound is square pyramidal and formed due to sp3d2 hybridization. BF3 boron trifluoride,
It shows trigonal planar structure and forms after sp2 hybridization. Next question. Tritium is a radioactive isotope of hydrogen. Emits which of the following particles? So you know hydrogen has three types of isotopes. One is protium, second is deuterium, and third is tritium. So tritium, its configuration 1H3 means its atomic mass is 3 and atomic number is 1. It emits low energy beta particles. Next question. The correct sequence of bond enthalpy of CX bond is, CX means कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एंथैल्पी का सीक्वेंस आपको बताना है. तो हमेशा याद रखिए, इफ atom attached atom has lower size, is smaller, then forms a strong bond, means it has large amount of bond enthalpy. So there are halogen group elements fluorine, chlorine, bromine, iodine. So sequence of increasing atomic size is fluorine is least atomic size, then chlorine, then bromine, then iodine, means iodine has largest size. So on the increase of atomic size, bond enthalpy decrease and CH3 have F यानी methyl fluoride has least energy. So right answer is second option. फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, CH3F की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा और मेथिल आयोडाइड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. तो देखिए यहाँ पर एल्कीन है. एल्कीन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड बट इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड. नॉर्मल कंडीशन में हॉफमैन रूल का फॉलोअप होता है, मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलोअप होता है, लेकिन यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ रिएक्शन में दिया हुआ है. CH3, CH3, CH, CH2, CH2, Br. Next question. The maximum temperature that can be achieved in blast furnace. Different types of furnace आपने स्टडी किया हुआ है. ब्लास्ट फर्नेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम ले सकते हैं दैट इज 2200 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. देखिए यहाँ पर 4 डायग्राम दिए हुए हैं. अब आपको बताना है कि बॉयल्स लॉ को कौन सा डायग्राम फॉलो करता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट इज P is proportional to 1/V, means if pressure increases volume decreases. So here answer 4, option 4 is right, as pressure is increases volume is decreasing because volume and temperature are relational, are proportional to each other. Next question. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell. तो यहाँ आपको voids को काउंट करना है. octahedral voids में कितने होंगे. तो देखिए number of atom in hexagonal primitive unit cell is 6 always. सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर कितना होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. तो यहाँ पर 6 आपने दिया तो 2 इंटू 6 हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर
12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओनली 6 होगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pKb ऑफ डाइमेथिल एमीन and pKa of acetic acid are given values. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is, देखिए यहाँ पर जो डाइमेथिल एमीन है और एसिटिक एसिड, इनके बीच में रिएक्शन होकर के सॉल्ट बना है डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। तो आपको उसके लिए पीएच कैलकुलेट करना है। दोनों वीक एसिड वीक बेस हैं। डाइमेथिल जो एमीन है वो वीक बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। इनके लिए पीएच हम इस तरह से काउंट करते 7 + ½ pKa - ½ pKb। तो आप यहाँ पर गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, उसे कैलकुलेट कर लेंगे 7.75 पीएच वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड है। यू हैव टू डिसाइड विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, लेकिन वहाँ मेटल्स होते हैं, फिर भी जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का मीन्स सेकंड पीरियड एलिमेंट बेरिलियम, ये स्मॉलर साइज का है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड while other members of the group form ionic bond, but beryllium does not form ionic bond due to smaller size. It forms covalent bond because its smaller size cation polarizes anion. Next question, which of the following reaction is the metal displacement reaction? देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन 2 देखिए, Cr2O3 + 2Al एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया मीन्स एल्यूमिनियम हैज डिस्प्लेस्ड क्रोमियम ऑक्साइड, सो इट इज metal displacement reaction. Aluminium is more electropositive than chromium, that's why aluminium is displacing chromium. Next question, ethylene diamine acetate, इसको शॉर्ट फॉर्म में EDTA भी कहते हैं, आयन इज कौन सा है इनमें से? हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। दिस इज राइट आंसर। EDTA is hexadentate ligand and it contains 4 oxygen atom, 2 nitrogen atom that provides electron and form coordination bond. आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।